वेलकम बैक। माई सेल्फ प्रजन कुमार रॉय। मैं आप सभी का जीरो टू हीरो मैथ्स में स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज मेंस्ट्रुएशन 18.1 एसोसिएटेड विथ क्लास 8। ओके, एक्चुअली क्लास 8 का ही नहीं कह सकते, बल्कि आपको जो है ना क्लास 9, 10 या फिर अदर गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू know about the menstruation. What is the menstruation? Menstruation means what? Measurement of anything else. It should be either in the form of triangle, rectangle, square, and it's maybe a parallelogram also. Okay, so these all are the two-dimensional shape. Okay, so in further, mensuration is divided into two types. That is one is the 2D, that is two dimensional, and other is the 3D. In this chapter we will deals with the two dimensional mensuration. Okay, so let's start. First of all, we all have to know about the formulas regarding the different shape. So first of all, let's know about the basic formula of a triangle. Here A, B, C. Okay, so this is actually the triangle whose AB length is given by A, it is base is B, and this is C. And let us suppose that this will be a height. Okay, this is actually the height of this triangle, that is denoted by small h. So first of all, we all have to know about the perimeter. What is the perimeter? So perimeter means the boundary, total count of the boundary means this is the actually perimeter. So whenever we are going to find the perimeter, then we all have to do AB plus BC plus CA. It means that A plus B plus C. So it's become A plus B plus C unit. Okay, this is actually the formula of finding the perimeter of any triangle. Now we have to know about area. The second thing is area, very very important. So whenever we're going to find the area, you all have to apply this formula, half into base into height. So for this triangle we can see here 1 by 2, base is B and height is denoted by h. So this is actually square unit because it is the unit. Unit means total bounded area of any region, closed region. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं भाई। सेकंड है rectangle. So in rectangle we can see here this is length, these are equal to each other, and this is breadth and this is breadth. Okay, this is equal to each other. Opposite sides are equal to each other. It means that we can say. Okay, so the number one is perimeter. ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम लोग फर्स्ट में पेरीमीटर के लिए देखेंगे। पेरीमीटर मीन्स L plus B plus B. So 2L 2B. So it will be, if we take the common 2, then it will be L plus B. Okay, so actually this is unit. So 2 into L plus B, that is the formula of finding the perimeter. The next thing is number 2, area. So what is the area? The whole bounded region of this given shape. So it will be length into breadth. Okay, so this will be the area of the any rectangle. Similarly, we can find about the square. In the case of square, we can see the whole sides are equal to each other, and this can be represented as a unit. So whenever we are going to find the perimeter, the first, I don't write here, only the first, that is the perimeter. So we all have to just add this one, these three things. Okay,
a plus a plus a plus a 4 times, that will be 4a. And number second is the area. So area means length into breadth. In the both case, either length or breadth, it is equal. So it will be a into a. So it will be a square unit. This is actually the you can say the area of square. The last thing is we have to find the parallelogram. So for the parallelogram, we all have to just apply the formula. This is actually length, and this is A, this is B, because the adjacent sides are given any time. This side will be equal, this side and this side will be equal, and this is actually the height. Okay, so it is denoted by H. So whenever we are going to find the perimeter is as similar as you can see the rectangle, but the area is different. So the area is equals to, you can see breadth B and H. So we have to just apply B into H. So actually this is the required formula of the force shape. Okay, so now we start the chapter. You can see the first question of this chapter. First question is given by the length and breadth of the rectangular field are in the ratio 9:5. If the area of the field is given by 14580 means 14,580 square meter, find the cost of surrounding the field with the fence at the rate of 3.25 square meter. First of all, we all have to know, we all have to draw the figure regarding this. So first of all, this is actually rectangle. This is A, B, C, D. Length given that, you can write here, given that ratio of length and breadth is equals to 9:5. So let length is equals to 9x and breadth is equals to 5x. So according to question, area is given by, okay, area is also given. Area is given by 14,580. So we have to just apply the formula of area for the rectangle. So it will be 9x into 5x is equals to 14580. So this will be 45x square is equals to 14580. So x square equals to 14580 by 45. Now we have to just cancel this. So after cancellation we can divide this with 45. So it will be, I think so, 1458 na. So after cancellation you can see it will be 324. Please do it. So x square is equals to 324. So x equals to under root 324. So 324 is the square root of 18. So the value of x becomes 18. Now my dear students, therefore required length is equals to 9x, that is 9 into 18. So it will be 162 meter. Okay, and similarly the breadth will be 5x, it means that 5 into 18. So 18 5s are 90 meter. So we are just find the length and breadth. Now we have to finding the perimeter, because here we have to find the total cost surrounding the field with the fence at the rate of 3.25 meter per square. It means that we have to just find the total boundary count. So therefore the perimeter is equals to 2, the formula is 2, you all know, 2 length plus breadth.
So it will be 2, length is given by 90 plus 18. So it will be 2 into 108. So it will become 216 meter. Okay, therefore total cost for fence, you can write, for fencing is equals to 216 into 3 point, how much, 3.25, 3.25. So after the multiplication it will become 702, और वी हैव टू कैलकुलेट, एक बार चेक कर लोगे कि सही है या गलत हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये 18 सही है बिल्कुल, और 18 9 जो ये भी सही है, ओके, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा ये देख लेते हैं एक बार, ये सही है कि नहीं, 90 प्लस 108, ये भी सही है, ये भी सही है। So after the calculation it will become 702 rupees. Okay, so this is the required answer. Got it everyone? Actually यही है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, बट प्रोसेस अपना यही है, इसी तरीके से हमें इसे प्रोसीड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक सो हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है ना। या फिर लेंथ तो x, वैल्यू ऑफ x इज दैट इज 18, ये दिस इज द करेक्ट, बट 9 into 18 that will be 162 ना। Oh, we got a mistake here. All my dear students, please forgive me. Actually, here I am right 90. It will be not a 19. It will be, please see here. The length is given by 2 into, the length is actually 162 na, 162 plus 90. Okay, so 2 into that will be 90, 252. Okay, so after the multiplication it will be 4, 5 to the 10, 504. Okay, क्या हो गया है, कभी कभी हो जाता है यार, गड़बड़ होती रहती है। चलो ठीक है, फिर से देखते हैं। टू 52, ओके, प्लस 90, so total cost is equals to, or you can see 504 into 3.25, so it will become, after the multiplication, 1638. So total required cost. Got it everyone? चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल इज uh, 16 by 9 meter. It means that the length is given by 16 meter and breadth is 9 meter. Find the side of the square whose area equals the area of the rectangle. Okay, and how much the perimeter is exceeds the perimeter of the square. Very good, very easy. Okay, first of all we have to draw the rectangle. Okay, this is actually 16 and this is 9, so length is
length is equals to 16 meter and breadth is equals to 9 meter. So the area is equals to 16 into 9, so that will be 144 meter square. Okay, so now we have to find the side of the square whose area is equals to the area of the rectangle. So according to question, area of square is equals to area of rectangle. So it will be area of square, that is a square side square, is equals to 144. So a is equals to under root 144. So a is equals to 12 meter. So we can easily find the side of a rectangle, side of the square. So it is 12, 12 and 12. Okay. So this is actually the answer for the side. First answer is come. Now how much does the perimeter of the rectangle access the perimeter of the square? So the perimeter, first we have to find the perimeter here, perimeter of rectangle, that is 4 into a, 4 into length, 2 length plus breadth. So it will be 2, length is given by 16 plus 9, 16 plus 9, so it will be 2 into 25, so it's become 50 meter. And similarly the perimeter of square, it will 4 into side is given by 12, so it will be 48 meter. So we can easily see here the perimeter of the rectangle is exceeds by 2 meter. Okay, 50 minus 48, that's become 2 meter. So this is the answer for question number 2. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे है एक पैरेललोग्राम के ऊपर. ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 12 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स. दिस इज वेरी वेरी इजी, यू कैन अप्लाई. जस्ट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देता हूँ कैसे करना है, आपको क्या क्या दिया हुआ है. एडजेसेंट मीन्स दिस इज 24 एंड दिस इज 18 गिवन बाय. ओके, आपको क्या दिया हुआ है, ऐसे ये है आपका लॉन्गर साइड से डिस्टेंस, और शॉर्टर साइड से अगर डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग तो कहाँ से आएगा अपना डिस्टेंस शॉर्टर साइड्स, ये है शॉर्टर साइड्स है ना. एक्चुअली शॉर्टर साइड से ये होगा ना, ऐसे कर सकते हो ये. ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, पहले आप इसको डिस्टेंस को फाइंड करोगे, फिर इसके हेल्प से ये डिस्टेंस भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, ये आप होमवर्क में आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे और बड़े बड़े क्वेश्चन आपको बताने हैं बढ़िया से. ठीक है, राजेश हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर. तो फिगर में आप देख लीजिए, एक क्या है आपके, उसके पास स्क्वायर है ना, 24 सेंटीमीटर ऑल साइड है. ठीक है, अब इस गार्डन के अंदर कुछ एरिया को छोड़ करके एक रेक्टेंगुलर शेप में आप देख पा रहे हो हाउस बनाया हुआ है. ठीक है, बहुत बढ़िया. He wants to construct a house on the middle of the plot. The garden is developed around the house. Find the total cost for developing the garden around the house at the rate of 40 rupees 50 per square meter. It means that हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हाउस का जो एरिया है ना, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना आ रहा है. So first of all we have to divide it into two parts. Okay, one is A, B, C, D. Actually this is the square and the other is D. I should change the color of the pen. D, E, F, G. ओके, अब आप ध्यान से देखो क्या कितना है. ठीक है, द गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस. फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस. नो, हमें ये इसका एरिया नहीं चाहिए, इसका एरिया तो इजीली मिल जाएगा, हमें इस गार्डन का एरिया चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर
A, B, C, D. It will be 24 into 24. So it will be 556 na. You just multiply 24 and 24, so it will be 4 4 6. 1 minute. We have to multiply now again. 576. It will be, I think so, 576 meter. So 5670 meter is the total area of the square ABCD. In this, now we have to find the area of rectangle. Area of DEFG. ओके, ये आप देख पा रहे हो ना, एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ जो है अलग अलग है ना. अगर सब इक्वल रहता तो ये भी स्क्वायर होता, बट स्क्वायर शेप का नहीं है. हाउस क्या शेप का है, आप यहाँ ब्रैकेट में हाउस यहाँ लिख मेंशन कर सकते हो. हाउस इज इक्वल्स टू 18 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ इज 18 and breadth is 12. So we have to multiply here 6 carries 3, 18 and 3, 216 meter square. So actually this is the area of this house. Okay, अब आप ध्यान से देखो एक चीज़ को, मैं ये सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ अभी, ध्यान देखना एक बार. ये टोटल एरिया आपको पता है ना, और ये एरिया आपको पता है, तो हमको ये सारा एरिया चाहिए, ये सारा एरिया चाहिए. तो ये एरिया निकालने के लिए अगर हम बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा. सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ गार्डन. तो गार्डन का एरिया कितना हो जाएगा बताइए आप. 576 माइनस 216. अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा अपना 360 ना, 360 मीटर स्क्वायर. सो आपको गार्डन का एरिया मिल गया. अब आपको पता है कि एक स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट लग रहा है डेवलप करने में वो 50 रुपीज़ लग रहा है. देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 360 into 50. So it will become how much? अब मल्टीप्लाई के लिए 0 0 30 5 3 से 15 15 18 मीन्स आपको 18,000 रुपये जो है ना टोटल कॉस्ट पड़ जाएंगे. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 5. अ फ्लोरिंग टाइल्स हैज अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 18 centimeter and corresponding height is 6 centimeter. How many such tiles are required to cover the floor of 540 meter square? तो आप देखिए यहाँ पे आपको टोटल फ्लोर दे दिया है, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर कितना दे दिया, 540 मीटर स्क्वायर. मैं समझा देता हूँ एक बार. मान लो ये पूरा टोटल एरिया था, वो किसी भी शेप में हो, ठीक है. इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप आपको ना एक पैरेललोग्राम शेप के आपको यहाँ पे टाइल्स लगाना है. तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, टाइल्स को निकाल लेना. ठीक है, टाइल्स के एरिया को निकाल लेना. अब आपको पता है कि एक टाइल्स का एरिया इतना कवर कर रहा है, दूसरे टाइल्स का एरिया इतना कवर कर रहा है, तीसरे का इतना कर रहा है, चौथा का इतना कर रहा है. तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइल्स के एरिया से, एरिया ऑफ टाइल्स से, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि हमें टोटल कितने टाइल्स टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना. एक एग्जांपल देता हूँ. मान के चलिए कि आपको जो है ना 9 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करना है और एक टाइल्स का जो एरिया है वो 3 स्क्वायर मीटर है. तो आप 9/3 से डिवाइड कीजिए, देखिए 3 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी इजीली. सो सिमिलरली ऑन दिस कंसेप्ट यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस आंसर. समझ गए होगे, तो ये भी ट्राई करना भाई. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6. ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे. कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो. बोला है एन एंड इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस
ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर ऑन द फ्लोर, यहाँ फ्लोर पे आपको दिख रहा है। फॉर विच फूड पीसेस would be would the ant have to take the longer round, कह रहा है कि किस फूड के लिए उसको लॉन्गर जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो राउंड राउंड वाला जो दे रहा है ना, इसको आपको सबसे पहले पेरीमीटर निकालना होगा, सबका अलग अलग पेरीमीटर निकालना होगा। ठीक है, तो सब अलग अलग शेप का है, तो आपको ध्यान से देखिए पेरीमीटर कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले मैं एक का दिखाता हूँ आपको, ठीक है, बाकी आप सभी का आप निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। सी एक्चुअली ये जो है ना शेप, ये क्या है, नंबर ए शेप क्या है, एक सेमी सर्कल है। ठीक है, आपको पता है एक सर्कल जो होता है ना, एक पूरा सर्कल, फुल सर्कल, इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, मैं बताना उधर भूल गया था, एक्चुअली 2πr होता है इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, एंड एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr²। अल्दो यहाँ पे एरिया अप्लाई नहीं करना है, हमें पेरीमीटर अप्लाई करना है। ये फुल सर्कल का होता है, बट अगर सर्कल को हाफ कर दोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। सो द हाफ सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जिसका सेमी सर्कल डेट विल बी πr प्लस 2r। अब 2r क्यों होगा, क्योंकि ये भी तो है ना, क्योंकि हाफ तो कर रहे हो लेकिन ये तो एरिया आपको रह जाएगा ना, यहाँ तो चक्कर काटना ही होगा हाफ सर्कल में जाने के लिए, तो πr प्लस 2r। ठीक है, तो इफ यू टेक द कॉमन r देन इट विल बी पाई प्लस 2। अब आप वैल्यू बैठाओ, देखो यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, 2.8 था, यहाँ पे 22/7, द वैल्यू ऑफ पाई विल बी 22/7, नॉट एवरीवन, वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2, सो इट विल बी 2.8। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, पॉइंट हटा दो, सो 28/10 कर दीजिए, और ये हो जाएगा 22 प्लस 14/7। ठीक है, तो 7 1 जा 7 4 जा, तो कितना हो गया 4 इंटू, ये ऐड कर लीजिए, प्लस 6 36/10। अब आप क्या कीजिए, बस खाली मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से। ठीक है, तो 4 6 जा 24, 24 का 2 कैरी इज 2, 12 and 2 14/10, so it will be, my dear student, 14.4 meter, centimeter not in meter, because the unit is given centimeter, so the answer is centimeter। तो आपको पता चल गया कि इसका एरिया कितना है, 14.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सिमिलरली इसे फाइंड करेंगे कि इसका एरिया कितना हो रहा है। देखो इसको एरिया फाइंड करने के लिए ना आपको ध्यान देना होगा कि इसमें क्या है, एक तो रेक्टेंगल भी है और एक सेमी सर्कल भी है। ठीक है, लेकिन आपको कहाँ से फाइंड करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ये तो पूरा आएगा, ये आएगा, ये आएगा, उसके बाद ऐसे ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होगा, आप इसको नेमिंग कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए बी, पहले मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब जब हम इसका एरिया निकालें, देखो एक साइड केवल अगर हम इसको निकाल देते तो ये पूरा फुल, आपको पता चल जा रहा है कि फुल का फुल क्या है, रेक्टेंगल है, बट ये है नहीं, इस बार रेक्टेंगल नहीं है इसमें। इसमें क्या है, एक साइड को हाफ कर दिया, एक साइड को हटा दिया है और ऐसे गया है चीटी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि उसी तरीके से आप निकालना होगा आपको पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर। ये देखिएगा बी के लिए मैं निकाल रहा हूँ, बी शेप के लिए निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। टोटल पेरीमीटर क्या होगा, ध्यान दीजिए, देखिए एक लेंथ है ना, तो एल, फिर दूसरा लेंथ है, नहीं दूसरा लेंथ नहीं है, ब्रेथ है इस बार, है ना। अब मैं नेम से ही लिखता हूँ, कितना है, बी डी लिख दिए, प्लस ए बी प्लस सी डी, ये लिख दिए, प्लस इसके साथ ऑन एडिशन क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, टोटल फुल सेमी सर्कल नहीं, ये आपका 2r वाला जो है हाइट है, तो ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, πr वाला केवल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस हो जाएगा। अब देखिए बी डी कितना है, 2.8 लिखिए, 2.8 प्लस ए बी कितना है, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 22/7 इंटू 2.8, बिकॉज द रेडियस इज गिवन बाई, अच्छा एक गलती और हम लोग कर रहे हैं, देखो ब्लंडर हो गया, ब्लंडर,
एक्चुअली ना ये टोटल जो है ना, ये डायमीटर दिया था, इसको हाफ करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये हमने क्या क्या कर दिया यहाँ पे 2.8 बैठा के कर दिया, जबकि 2.8 नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज तो इट इज़ एक्चुअली गिवन द रेडियस, डायमीटर नॉट अ रेडियस। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 1.4 है ना, तो यहाँ पे हमें क्या बैठाना पड़ेगा 1.4। तो ये हो जाएगा आपका, कुछ ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते गलती तो है, गलती ही होती है। ठीक है, इस बार 7 2 होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, तो इस बार यहाँ पे क्या होगा 72 होगा, तो इस बार क्या होगा 7.2 होगा। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ भी क्या होगा 2.8 हमको सब्स्टिट्यूट नहीं करना होगा, हमें 1.4 करना होगा। ठीक है, अब सभी को ऐड कर दीजिए, 2.8 इंटू ये सॉरी प्लस 3, बिकॉज 1.5 एंड 1.5 दैट्स बिकम 3, प्लस ये कितना हो जाएगा 0.2, या फिर आप कहिए 2, यहाँ पे 10 कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का कितना होगा 44/10। अच्छा, इसे ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 5.8, प्लस ये हो जाएगा 4.4, ऐड कीजिए, सो 10.2 सेंटीमीटर। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे वन फिगर में क्या था 7.2 था, सेकंड में कितना है 10.2 है, तो अभी कौन सा बढ़ आगे जा रहा है भाई, बी जा रहा है। अब सिमिलरली क्या कीजिएगा, इसके लिए निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आप निकाल लीजिएगा, निकाल दूँ, अगर निकालना हो तो फिर से बोलिएगा, मैं आपको अलग से मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहेगा, सारा कुछ रहेगा, डिटेल रहेगा, आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, क्या दिया है आपको, इन एडजॉइंग फिगर, आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, यू कैन सी हियर द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर एक सर्कल रहे, ऐसे उसको कंसेंट्रिक सर्कल को कहते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। यहाँ पे दो सर्कल है, एक इनर में है और एक आउटर में, बाहर में है। तो आपको क्या दिया है, एरिया किसके दिया है, द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब ये इसका एरिया आपको दिया हुआ है ना। ये द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल दिया है, हम लेट कर लेंगे कि इनर सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए लेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो सबसे पहले आउटर सर्कल का एरिया लिखिए, आउटर सर्कल एरिया ऑफ, आउटर सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सो 22/7 इंटू आर मीन्स 21 इंटू 21 बिकॉज स्क्वायर, सो 7 3 ज़ा। सो आप ऐसा करिए ना, आप इसको हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 66 इंटू 21, बस इतना ही रखिए। ठीक है, और इनर का कर लीजिए, ऐसा करिए, इसको ना काटिए उटिए मत, कुछ छोड़ दीजिए ऐसे ही, बाद में मजा आएगा करने में। 22/7 भी मत लिखिए, पाई के फॉर्म में ही रहने दीजिए, आर को लिख लीजिए 21 होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली वी हैव टू एरिया ऑफ इनर सर्कल, सो इनर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई, इस बार आर की जगह पे हम क्या लेट करेंगे, आर ही ना, बिकॉज आर स्क्वायर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप एक चीज़ को बताइए मुझे कि अगर हम बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या आएगा हमारा, ये वाला एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया जो जो सेट किया गया है, शेडेड एरिया, ये हमें मिल जाएगा। तो बस आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा वाला एरिया कितना है, ये है, देखिए पाई 21 होल स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच 770, लिख लीजिए 770। चलिए अब ध्यान दीजिए, पाई कॉमन, so it will be 441 because 21 whole square 441 minus r square is equals to 770. Now value of pi is 22/7, so 441 minus r square
इज इक्वल्स टू 770। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप 11 से कट कीजिए, 11 टू ज़ा, ये 11 से कटेगा, 11 7 जो 0 70। अब इसे कट कीजिए 2 से, 35। ठीक है, सो क्या है आपका 441 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 इंटू 7। ओके, 35 इंटू 7, so minus r square is equals to 35. We have to just multiply this, so 5 7 is a 21 21 24 24 23 24, and that will be minus 441. अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। 441 से 245 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो 11 में से अगर 5 जाता है, ठीक है, तो होगा 6। ओके, एंड यहाँ पे क्या था 3 ना, ओके 3 3, so that will be 13, that will be 9 and 196, it will be 196, but minus sign because this is bigger, so minus minus will be cancelled out, so r is equals to under root 196, so it's become 14 centimeter. So the answer is 14 centimeter because 196 is the square root of 14. So आपका जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल का जो रेडियस है, ये वाला कह सकते हो आप, ये आएगा 14 सेंटीमीटर। गॉट इट एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is here given by the copper wire when bent in the form of square। मतलब एक मान लो लंबा सा एक कॉपर वायर था, ठीक है, इसको एक बार फोल्ड करके क्या किया गया, स्क्वायर बना दिया गया है। कैसे, देखो, इसको फोल्ड करके स्क्वायर बना दिया गया, और इसका एरिया कितना ले लिया गया है, 121 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो बोला इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। नाउ सी हियर, ध्यान से सुनो। अब एरिया आपको दे दिया है, ये पूरा एरिया, so with the help of this area we can easily find the side of the square. So the side of the square is equals to of the square is equals to under root 121. Okay, you know all very well, so it will be 11 centimeter। यहाँ तक समझ में आया, मतलब ये 11 11 11। सो सो अगर हम इसको अगर हेल्प में लेते हैं तो हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका हम पेरीमीटर, मतलब ये जो वायर था ना इनिशियली कितना लंबा था ये पता चल जाएगा। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 इंटू 4, दैट विल बी 44 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, सेम वायर है ना, वायर सेम है, अब इसी वायर से आपको क्या बनाना है, इसी के लंबा का एक सर्कल बना देना है। तो आप बताइए, अगर हम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, 44 सेंटीमीटर होगा। देयरफॉर द circumference of circle is equals to 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ही होता है सर्कल के केस में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं 2 पाई आर, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 44 फ्रॉम 2 22, so pi value 22/7 into r is equals to 22। okay, so 22 cancel, so r is equal to 7 centimeter, 7, so this is the 7 centimeter। Now we have to just find the area, therefore required area, the required area is equals to pi r square, so by 22/7 into 7 into 7, so 7 7 cancel, and 7 into 22, that will be 14.154 centimeter square। this is the required area for this। ओके, गॉट इट एवरीवन? देख लेना भाई, बढ़िया से स्क्रीनशॉट जो भी लेना होगा ले लेना, या फिर कॉपी लेकर बैठो तो आराम से सॉल्व करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, फिगर से एसोसिएटेड है। फ्रॉम द एडजॉइंग फिगर फाइंड द नंबर 1 द एरिया ऑफ
triangle ABC, length of BC and the length of altitude from A to BC. ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या बोला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोला है। आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है ना। इट मीन्स डेट आपको क्या क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है एंड हाइट दिया हुआ है। तो आप इजीली यू कैन इजीली फाइंड द एरिया। नंबर वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, that will be half into base into height। वेरी फर्स्ट में ही मैंने इस फॉर्मूला को डिस्कस किया था, 1/2, बेस कितना है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर का हाइट है। तो आप जब इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, सो इट विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये तो हमारा निकल गया फर्स्ट। नंबर सेकेंड क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ BC मीन्स वी हैव टू फाइंड द BC। So for finding the length of BC, we have to apply the Pythagoras theorem. So what is the Pythagoras theorem? The hypotenuse whole square is equals to perpendicular whole square plus base whole square. So we have to find the hypotenuse, that is BC. So BC whole square is equals to perpendicular means AC. So AC is 4 centimeter square and base means AB. So it will be 3 centimeter square. So BC whole square is equals to 16 plus 9, so BC whole square is equals to 25, so BC is equals to under root 25, so it will become 5 centimeter. So the second answer is also done. Now the third number question. See the question number third. The length of altitude from A to BC means these. We have to find out this. Okay. So first of all, अब ध्यान से देखना, अगर आप इसको यहाँ से ड्रॉ करते हो, फिर से देखो एक बार, जब इसको आप यहाँ से बीचों बीच से ड्रॉ करते हो ना, तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से क्या क्या चीज़ें आपको मिल रहा है। ये आपको मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली 90 डिग्री। फिगर में एक्चुअली ये साइड बड़ा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ से इसको एंगल को बाइसेक्ट करते हो ना, 90 डिग्री का एंगल था, इसको बाइसेक्ट करते हो तो दिस एरिया, दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो टोटल कितना था, ये 5 था। तो अगर हाफ की बात करोगे तो ये कितना आएगा, 2.5। अब ध्यान से देखो, ये कितना आ गया आपका, 2.5 आ गया। और आपको ये निकालना है, ये एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ठीक है, ये कितना है आपका, बेस है, और ये क्या है भाई, हाइपोटेनियस है। तो इस बार सेम वही कहानी है। मैं अगर इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो ध्यान से, इस फिगर को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ सजाकर। प्लीज सी, एक्चुअली दिस इज द पॉइंट डी, यू कैन सी 90 डिग्री, okay, D, that is B, and this is A. Okay, so you all know very well, AB is given by 3 centimeter. The AB is 3 centimeter, okay, and DB is 2.5 centimeter. We have to find the AD. So whenever we apply the Pythagoras theorem, we got AD square is equals to AB whole square minus BD whole square. So AD means how much? We have to find AD, and AB means 3 whole square minus 2.5 na, means 25 by 10 we can say. So AD whole square is equals to, this will be 9 minus, if you cancel this, so 25 by 4, okay. So AD whole square is equals to, it will be 36 minus 25 by 4, okay. So AD whole square is equal to 36 minus 25, that will be 9 by 4. So AD is equals to under root 9 by 4. So it will become 3 by 2. It means that 1.5 centimeter. So मेरे dear students, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, ध्यान से देखो, 1.5 सेंटीमीटर। Got it everyone? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10। और रेक्टेंगुलर गार्डन 80 मीटर बाई 40 मीटर, मीन्स 80 मीटर क्या दे दिया है इसका, 80 मीटर जो है ना लेंथ दिया है, एंड 40 मीटर, हाँ 40 मीटर क्या दिया है, ब्रेथ दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, एंड डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, 4 का 4 पार्ट क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है।
and by the two cross path equal into four equal parts by two cross path of 2.5 मीटर वाइड। मतलब ये जो क्रॉस पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये कितना है, इसका चौड़ाई कितना है भाई, 2.5 मीटर वाइड है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस पाथ एंड फाइंड द एरिया ऑफ अनसेप्ड पोर्शन। मतलब अनसेडेड पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। देखिए, मतलब दोनों चीज़ निकालना है। कहने का मतलब ये पूरा निकालना है और ये पूरा निकालना है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको नेमिंग करेंगे ए बी सी डी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो इट विल बी 3200 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया। एरिया ही पूरा एरिया है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें से कुछ चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। पहले ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ें हमें माइनस हो रहा है। एक बार थोड़ी सी कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। ये टोटल कितना था, 80 था। ध्यान देना, टोटल कितना था, 80 था। अगर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, मीन्स कितने पार्ट में डिवाइड करते हो, 2 पार्ट में, मतलब इधर और इधर। ठीक है, ये कितना छोड़ रहे हो आप बताओ, 2.5 मीटर। मतलब यहाँ से हमने 2.5 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बताइए कितना आ रहा है। 2.5 को जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77.5 आएगा। ठीक है, यानी ये वाला आपका पोर्शन कितना आ गया, 77.5। ये इसको फिगर में ही समझ लो, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला इतना सा, क्योंकि एक निकल गया तो बाकी सब निकल जाएगा। ये वाला पोर्शन की जब आप बात कर रहे होगे तो टोटल कितना था, 40 था। 2.5 यहाँ से छोड़ दो। ठीक है, 2.5 यहाँ से छोड़ दो। जब 2.5 यहाँ से छोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 37.5। यानी ये पोर्शन कितना आ जाएगा, 37 नहीं, ये पूरा पोर्शन नहीं है भाई, ये आधा पोर्शन। मतलब ये केवल छोड़ के इतना आ रहा है। अगर फिर इससे हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, ध्यान से देखो एक बार फिर से समझो, समझने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी। ये कितना है, 2.5। टोटल कितना था, 80। इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करो 2.5 को, आएगा कितना, 77.5। अब 77.5 में ये भी है, ये भी है। इसका मतलब किसी एक को निकालना पड़ेगा, तो बाई 2 कर दो। ठीक है, बाई 2 जैसे ही करोगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी सेम काम करना है आपको। टोटल कितना है भाई, टोटल था 40, इसमें से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 37.5 आएगा, है ना। बाई 2 कर दो तो आपको ये पोर्शन मिल जाएगा। अब आपको लेंथ पता है, रेक्टेंगल का ब्रेथ पता है, तो एरिया पता चल जाएगा। अगर एक का एरिया आपको पता चल गया तो आप इसका भी एरिया निकाल सकते हो। मतलब इंटू 4 कर दोगे तो सबका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं कर ही देता हूँ। ठीक है भाई, ध्यान दो, मैं इसका भी नेमिंग कर लेता हूँ। ये तो ABCD ठीक था। ठीक है, ये क्या था, ABCD। ए था, इसको लिखो, इसको AEFG। तो लिखिए AG इक्वल्स टू, आप लोग को अभी बताया था ना, 77.5/2 एंड नहीं, AG 77 नहीं होगा, AG एक्चुअली होगा 37.7/2 मीटर। एंड बार बार गलती कर रहा हूँ, देखो EG, ये था EG, एंड AG कितना होगा, AG हो जाएगा 77.5/2, एक्चुअली 5 है, बाई 2 मीटर। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, एक बार चेक कर लो भाई। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड 2 से डिवाइड कर लेना, और इसे भी 2 से डिवाइड कर लेना, और फिर आप जो है इसका एरिया निकाल लेना। सो एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFG। तो इसका एरिया लेंथ EG इंटू AG। सो जो आएगा उस वैल्यू से आप यहाँ पे इंटू कर लीजिएगा, स्क्वायर मीटर इसका केवल इतने का एरिया होगा। अब इस एरिया में अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो इसका और इसका सबका निकल जाएगा। तो ये अनसेडेड एरिया का आपको मिल गया, है ना। पहले अनसेडेड एरिया का मिलेगा, अब क्रॉस सेक्शन का नंबर 1 जो निकालना होगा, आप इस टोटल एरिया में से अनसेप्ड एरिया को, मतलब जो फाइंड करके आएगा उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये क्रॉस सेक्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब ट्राई करना, हो जाएगा, बहुत ईजी है। बहुत सारा कंसेप्ट आपको मिल गया होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए।
In this question, in the adjoining figure ABCD is a rectangle. आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये कितना है 100 सेंटीमीटर है और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। नहीं, ये 7 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो फिगर में ही सारा क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, ध्यान से देखो। एक टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर है, इतना कितना है ये 12 सेंटीमीटर है। एक टोटल ये लग रहा है ना कि ये 100 सेंटीमीटर पहले और किसी दूसरे सवाल का आ गया है क्या यहाँ पे, या फिर सम से कुछ रॉन्ग प्रिंटेड हो गया लग रहा है, क्योंकि 18 सेंटीमीटर तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। अगर ये 100 सेंटीमीटर होगा इतना सा इतना सा, तो ये टोटल 18 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है? तो शायद इसमें लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। चलिए बाद में देखेंगे सवाल को, ठीक है। आगे देखिए नंबर 12 बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ग्रास लॉन ऑफ द एरिया ऑफ इतना, मतलब आपको ABCD दिख रहा है ना, एक लॉन है ग्रास का, ठीक है, इसका एरिया आपको गिवन है। अ पाथ यूनिफॉर्म विथ रन्स अराउंड इट, मैंने बाहर से पूरा एक तो पाथ दे दिया गया है, ठीक है। एरिया ऑफ द पाथ इज गिवन है, मतलब इसका एरिया भी आपको गिवन है, ठीक है। कितना है 295 मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड इनक्लोज द लॉन एंड द पाथ एंड द विड्थ ऑफ द पाथ, दोनों आपको निकालना है। तो ध्यान दो, हम लिखेंगे, एक काम करेंगे ध्यान से, ABCD है ना, इसको लिख लीजिए EFGH। तो एरिया ऑफ ABCD गिवन बाय हाउ मच, 729 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली इट इज स्क्वायर इन शेप, ओके। एंड नाउ आपको दिख रहा होगा एरिया ऑफ द पाथ कितना है, 295 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर दोनों को ऐड कर देते हो ना, इन दोनों को, इस एरिया को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ EFGH कितना हो जाएगा, 729 प्लस 295 ऐड कीजिए, कितना आएगा 4 and 5 14 दैट इज 10 12, कितना हो गया 1024, ठीक है। ये क्या मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, ये मीटर होगा ना, मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड इनक्लोज द लॉन, यानी लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मैंने इस बाउंड्री का लेंथ की बात कर रहे हैं कितना होगा। तो ये बाउंड्री का लेंथ भी आप देखोगे कि स्क्वायर शेप का ही है। देयरफॉर लेंथ ऑफ, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको साइड निकालना पड़ेगा। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर कह सकते हो, स्क्वायर EFGH, ये हो जाएगा √1024, ठीक है। तो 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है बताइए, किसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? एक्चुअली ये होता है 2 का पावर 10, 2 का पावर 5 यानी 32, यानी 32 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 32 मीटर स्क्वायर मीटर। सो ये आपको मिल गया क्या, बाहर का साइड मिल गया, ठीक है, ये 32 है, ठीक है। और अंदर वाला कितना था ये भी देख लेंगे, वो देख लेंगे बाद में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले देखो 32 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका बाउंड्री कितना है, तो टोटल नंबर 1 लेंथ ऑफ बाउंड्री, boundary is equals to 4 into 32, that will be 8, 128 मीटर, ये आपका टोटल बाउंड्री हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, इसको विड्थ को निकालना है, नंबर 2, ध्यान दीजिए, नंबर 2 क्या निकालना है, विड्थ को निकालना है, ठीक है। तो विड्थ अगर निकालना है आपको, ध्यान दीजिए, तो कैसे करना पड़ेगा, पहले ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। ये तो हमको पता चल गया 32, अब ये भी पता करना होगा, तो ये कैसे पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा। तो देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर ABCD कितना हो जाएगा, √729, 729 जो है ना 27 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। सो 27 मीटर, ये आपको पता चल गया। अब ये देखिए टोटल कितना है, 32 है, ठीक है। तो 32 में से अगर हम माइनस कर लेते हैं 27 को, तो हमें क्या पता चल जाएगा,
ये और ये पोर्शन पता चल जाए। तो देयरफॉर लिखेंगे विड्थ ऑफ पाथ 32 माइनस 27/2। अब बाई 2 क्यों है मैं बताता हूँ, पहले देख लो एक बार, ठीक है। तो 3 to 5, 5/2 मीन्स 2.5 मीटर। अब बाई 2 इसलिए होगा क्योंकि जब 32 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलेगा, तो आपको तो एक ही पोर्शन का वेट चाहिए ना, तो इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दोनों शामिल था। सो 2.5 मीटर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सो बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर।